So there was some issue in the recording. So let's continue. So we have talked about this thing that this bill is in discussion to overall the this higher education, right? तो उसके बारे में they are saying. Then there is another news article which is related to mining, illegal mining. So certain allegations are being placed by the Congress that the Congress alleges that there is a forced Gram Sabha consent for the Singrauli mining. So they are saying what there should be a CBI inquiry because this they are calling it what अंगूठा चोरी, वो कह रहे पहले सीट चोरी, नोट चोरी, whatever, and now they are saying that government is moving to अंगूठा चोरी. अंगूठा चोरी means stealing the thumb impressions of the people. So they are saying that ग्राम सभा के जो देखो whenever there is a tribal area, दिस इज व्हाट आई बेसिकली वांट टू टीच. ये वो अंगूठा चोरी वो सब इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट वेन एवर देर इज अ ट्राइबल एरिया, राइट. सो ट्राइबल एरिया में इफ यू वांट टू डू माइनिंग, राइट, तो माइनिंग के लिए क्या है, परमिशन लगेगा, राइट. ओनली देन यू कैन माइन. तो ट्राइबल एरिया में माइनिंग के लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा? यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ग्राम सभा. And what is Gram Sabha? Gram Sabha is what? It is the group of people of voting age. तो जितने भी उस जगह के उस गांव के जितने भी 18 प्लस लोग हैं, यानी कि जिन जो क्या है वोटिंग पॉपुलेशन, जो वोट कर सकते हैं, दे ऑल आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. एंड इफ ग्राम सभा गिव्स परमिशन इन द ट्राइबल एरिया फॉर माइनिंग, तो आप क्या है माइनिंग कर सकते हो फॉर द माइनर मिनरल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. तो अभी क्या है एलिगेशन क्या लगा रहे हैं, देयर सेइंग कि ग्राम सभा में तो परमिशन दी नहीं, दे हैव फॉर्स्ड द थंब इम्प्रेशन ऑफ उन लोगों के जो मर गए हैं या जो वहां पे रह भी नहीं रहे हैं, उन सबका डेटा उन्होंने ऐसे मेंशन किया दैट ये क्या है, इन्होंने धोखे से दिखा रहे हैं कि ग्राम सभा की परमिशन है लेकिन नहीं है, राइट. तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं, हमें क्या याद रखना है that in tribal area the permission who gives, question क्या आएगा, in the tribal area who gives the permission for mining in the case of minor mineral, so it comes from the ग्राम सभा. एंड who all are the members of ग्राम सभा, जितने भी 18 प्लस लोग हैं उस एरिया के, they are the part of what, that ग्राम सभा, राइट. सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर. एंड एक चीज जो आपने कमेंट सेक्शन में और बतानी है, that under which schedule, कौन से शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में इट टॉक्स अबाउट द ट्राइबल एरियाज. तो ट्राइबल एरियाज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से शेड्यूल में बात करी गई. आई होप यू नो दैट देयर आर 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which talks about different things, right. So I'll give you one hint about this answer, that there is not a single schedule, there are 2 schedules. आपने बताना है कौन कौन सा एंड कौन से शेड्यूल में कौन से ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है, राइट. तो दिस थिंग यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. So let's move to the next thing. Then this examine call records of Ram temple employees, ये सब अखिलेश यादव ये बोले सब आपने देखा होगा that राम मंदिर की जो है वो स्कैम के बारे में न्यूज में चल रहा है काफी दिन से. Then we can talk about this thing. This thing is related to the NCG writes to India bloc on protest over Jammu and Kashmir statehood. So what is they are going to protest? Jammu and Kashmir government is going to protest for what? Statehood. तो इसको थोड़ा सा समझते हैं. If you remember,
that initially Jammu and Kashmir was a state. Initially what? Jammu and Kashmir क्या था? State था. But it was not a simple state, it was a special state. इसके बाद special status था under Article 370, right? So it was state. Under Article 370 इसके पास कुछ certain special powers थी. बाद में क्या है, इस Article 370 को क्या कर दिया गया? Repeal कर दिया गया. And Jammu and Kashmir क्या हो गया? Jammu and Kashmir was made a UT. And Jammu and Kashmir was also bifurcated and सिंगल स्टेट से क्या है, 2 यूटीज बना दी. वन वाज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड वाज व्हाट? लद्दाख. Ladakh was also made UT. So from one state, by repealing Article 370, 2 UTs has been created, right? But at the same time, जब Act pass हुआ था what? Jammu and Kashmir State Reorganization Act, right? So this act was passed and 2 UTs were created, right? But in the same act, it was promised that Jammu and Kashmir over a period of time will be again made what? Again it would be restored to the status of statehood. तो उसको statehood बना दे दिया जाएगा, फिर से उसको state बना दिया जाएगा जब condition would be apt, right? So this is what the वहाँ की local government is asking, that फिर अभी तक क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को उसका स्टेटस रिस्टोर नहीं किया गया एंड उसके लिए दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट. तो आपको ये जो सारी टाइमलाइन है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट इनिशियली इट वाज अ स्टेट बट इट हैज सर्टेन एंड स्पेशल प्रोविजंस बट टेम्पररी प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 370. उस आर्टिकल को बाद में रिपील कर दिया गया, राइट? एंड इस रिपील के बाद क्या है, जम्मू एंड स्टेट को, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 UTs वर क्रिएटेड. सो जम्मू कश्मीर UT एंड लद्दाख UT. एंड एट द सेम टाइम इट वाज प्रपोज्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर वुड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन वुड बी कन्वर्टेड बैक टू स्टेट. तो वही डिमांड कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट दैट हमको फिर से क्या है, स्टेटहुड का जो स्टेटस है वापस मिल जाए. So I hope this is clear. So let's move to the next thing. Okay. This is also some news from the field of environment. Certain allegations are being placed on the wildlife board. तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बाय सम एनवायरमेंटलिस्ट दैट अ PIL हैज बीन फाइल्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी. तो दो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एक तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड सेकेंड इज इसकी स्टैंडिंग कमेटी. इन दोनों के ऊपर क्या है, एलिगेशंस लगाए गए हैं दैट दे आर गिविंग क्लियरेंस टू ऑल द प्रोजेक्ट्स. दे आर सेइंग जितना भी रोड्स माइनिंग या इंडस्ट्री के लिए जितना भी प्रोजेक्ट आता है जिसपे फॉरेस्ट एरिया जाता है, दे आर नॉट इवन थिंकिंग कि फॉरेस्ट एरिया जा रहा है या उसमें क्या है फॉरेस्ट लैंड हार्म हो रहा है. दे आर जस्ट डाइवर्टिंग ऑल the protected areas for construction of roads and mining and construction of industry. So this is their allegation. It is against whom they have filed a PIL. Then they are also saying that under the act, this national body for wildlife जो है इसको it should meet, right? Every year it should meet, have a meeting annual. It should meet annually. There should be one annual meeting of this body. But they are saying that ये body तो कभी मिली नहीं है. लास्ट इसकी मीटिंग जो हुई है वो 2025 में हुई है और वो भी 13 साल बाद हुई है. और they are saying that ये तो कुछ सारे काम जो सारे डिसीजंस ले रहे हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने, वो सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, स्टैंडिंग कमेटी ही ले जा रही है. ये ऑर्गेनाइजेशन तो मिल भी नहीं रही है, राइट? तो ये सारे एलिगेशंस उनके बारे में. तो 2-3 चीजें हमने इसमें याद रखनी है. First of all, we have to remember that this National Board for Wildlife ये किस टाइप की बॉडी है, राइट?
तो अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अगर इट इज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी. So this is what, this is a statutory body formed under the National Wildlife Act, right? So this is a statutory body formed under the Wildlife Protection Act of 1972. So this is a statutory body. पहली चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए, right? This is important. And second point जो important है, this body is headed by whom? इस बॉडी का हेड कौन है? सो दिस इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So this is something which you need to know, that National Board for Wildlife is an apex statutory authority under the Wildlife Protection Act 1972, and it is chaired by Prime Minister with Environment Minister as the vice chairperson. And so question can directly be asked that नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन क्या होंगे? तो वहां पे लगेगा शायद कोई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से होगा. नो, रिमेंबर दैट इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, राइट? तो ये आपने याद रखना है. इसीलिए आई डिस्कस दिस न्यूज टू डिस्कस अबाउट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. देन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. देन एडिटोरियल पेज पे दो तीन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, दो तीन एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलेटेड टू द दिस स्पेशल इंटेंसिव रोल रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन मेघालय. Right, this thing is very very important which you need to talk about in detail. Sorry, not Meghalaya, Manipur. And the second editorial which we need to discuss, then it also talk about in detail the India Australia partnership. तो काफी दिन से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी सारी न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करने वाली चीजें. एंड थर्ड थिंग इज ईरान एंड इंडिया, or Iran and US must address the trust deficit. So ongoing this Iran and US conflict, this we need to discuss. So these both news articles should be discussed in detail, क्योंकि इनके बारे में काफी दिन से न्यूज में चल रहा है. वी हैव नॉट कवर्ड पिछले महीने का करंट अफेयर. सो आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, दैट क्यों हुआ एंड व्हाट ऑल इवेंट्स हैज टेकन प्लेस, वन थिंग. एंड सेकंड द इश्यूज इन मणिपुर. मणिपुर इश्यूज भी काफी देर से न्यूज में है, दैट कुकी वर्सेस पीटीज का इशू, एंड व्हाट इज दिस, व्हाई दिस स्पेशल इंटेंसिव रोल रिवीजन के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, राइट? तो ये सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. सो आई होप, बिकॉज अभी क्लास अगर अभी डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम क्या है सेपरेट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. देन द लास्ट न्यूज जो आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज अबाउट द दिस इज ऑल्सो समथिंग जो अभी हुई नहीं है, इज गोइंग हो सकती है, तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. दैट सेंटर इज गोइंग टू रिवाइज द एनएफएसए, नेशनल, व्हाट इज एनएफएसए, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो दिस इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो बेसिकली क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट गवर्नमेंट क्या है, प्रोवाइड फूड एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस टू द पुअर. एंड इसी में क्या है, अंडर दिस एक्ट ओनली इट प्रोवाइड्स, इट टॉक्स अबाउट अनंतोदय. एंड व्हाट आर अनंतोदयस? दे आर द poorest of the poor, poorest of the poor. तो इनको क्या है, पोरेस्ट ऑफ पोर को गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड अंडर दिस एक्ट, अंडर एनएफएसए 35 kgs
of grain per household. This is important, per household. They have been promised what? 35 kgs of food grains, right? अभी क्या है, इसी चीज को गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइज. And what are they trying to say? They are saying that we will provide what the center is proposing the amendment to the NFSA to change the Anantodaya food grain entitlement from a household based system. तो यह अभी मैंने आपको बताया कि पर हाउसहोल्ड कि पूरे एक घर को क्या 35 केजी वो क्या है फूड ग्रेन्स देंगे, बट नाउ दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस हाउसहोल्ड बेस्ड सिस्टम टू व्हाट पर कैपिटा. पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन. सो जितने भी फैमिली में लोग होंगे उसको एक पर्सन को कितना देंगे 7 केजीज एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 35 केजीज. तो इसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक फैमिली में क्या है 4 मेंबर्स हैं. So 4 into 7 is what they are going to get 28 kgs. And if some family has 5 members, then 7 into 5 is 35. And if some has 6 members, but they will not get 42, 35 is the maximum limit. Also, they will get 35 kgs only. So what they are trying to say that they are going to rationalize and address the inequities in the system. So they are saying that now we are moving to the per person, that per person 7 kgs देंगे. अब इसमें क्या है, but states are protesting, mostly क्या है southern states are protesting. Why they are protesting? They are saying that mostly South India में क्या है, there is a system of nuclear families. तो nuclear families में क्या है mostly there are 4 people or sometimes even 3 people. तो वो they are saying that वहाँ पे उनका फूड ग्रेन का जो उनको मिल रहा था वो कम हो जाएगा और उनके ऊपर क्या है उनका क्या बर्डन ऑन द पुअर फैमिलीज विल इंक्रीज बिकॉज दे आर सेइंग प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं. तो इस जो चेंज जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है सदर्न स्टेट्स और इसको क्या है चैलेंज कर रही है. सो आई होप दिस इज समथिंग जो आपको क्लियर हो गया हो. तो याद रखना दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेशनल फूड Security Act is very very important under which there is a component of Anantodaya जिनके अंदर क्या होता है that you have to provide poorest of poor को क्या है 35 kgs per household. Now we are what planning to shift from per household to per capita with a limit of 7 kgs per person and with a maximum limit of 35 kgs. So I hope this thing is clear. बट दिस इज अभी प्रपोज है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. स्टेट्स आर गिविंग द फीडबैक कि ये नहीं चलेगा, राइट. सो आई होप जितने भी न्यूज़ आर्टिकल आज हमने डिस्कस किए वो आपको क्लियर होंगे. तो जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं आपने उनका जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में देना है. एंड कोई भी डाउट हो यू कैन लाइक राइट अस इन द कमेंट सेक्शन. आई होप यू लाइक दिस सेक्शन. Thank you so much students. We'll meet tomorrow at the same time again. Thank you.